دیکھیے، میرا نام کاشف الدین سید، خیبر یونین آف جرنلسٹ کا میں پریزیڈنٹ ہوں۔ آج کا احتجاج پورے ملک میں جو صحافیوں کی جبری برطرفیاں جاری ہے اس کے خلاف تھا۔ جن صحافیوں کے بقایا جات ادا نہیں کیے جاتے ان اداروں کے مالکان کے خلاف تھا، اور حکومتوں کے خلاف تھا کہ وہ اپنے قوانین پر، منیمم ویجز قوانین پر عمل درآمد میں وہ ناکام رہے ہیں۔ ڈمی اخبارات کو اشتہارات دیے جا رہے ہیں، اور ڈمی اخبارات کا ایک رخ اب پی ڈی ایف اخبارات کی صورت میں نکل آیا ہے۔ تو ہم صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ہمارے ان مطالبات کو تسلیم کیے جائے۔ ہم اگلے مرحلے میں صوبائی اسمبلی میں جا کے احتجاج کریں گے، ہم گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم محکمہ اطلاعات کے دفتر کا بھی گھیراؤ کر سکتے ہیں، ہم مالکان کے گھروں اور دفاتر کا بھی گھیراؤ کر سکتے ہیں، اور ہم اسلام آباد کا بھی رخ کریں۔ آپ جا کے قبائل میں دیکھیں، ہمارے ساتھیوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، غائب کیا گیا، بم دھماکوں میں اڑایا گیا، ان کے فیملیز کو پریشان کیا گیا، ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو روکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ عسکری تنظیموں کی جانب سے بھی خطرات درپیش ہے، سیاسی جماعتوں کی جانب سے، ریاستی اداروں کی جانب سے، اداروں کے مالکان کی جانب سے بھی خطرات درپیش ہے۔ تو ان تمام خطرات کا ہمارے خیبر پختونخوا کے تمام صحافی پشاور میں ہے، اضلاع میں ہے، قبائلی اضلاع میں ہے، وہ اس کا سامنا کر رہے ہیں، اور یہ چیلنجز انہیں درپیش ہے۔ تو ہمارے مطالبات ہیں کہ ان کو جاب سیکیورٹی دی جائے۔ ہم صوبائی حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے قوانین پر عمل درآمد کرائیں۔ اسی پشاور میں ایسے اخبارات ہیں جو ہمارے کارکنوں کو 15,000 اور 20,000 روپے تنخواہ دے رہے ہیں، کچھ مفت کام لے رہے ہیں۔ ہم صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لیبر لاز ہیں، جو منیمم ویجز کا قانون ہے، وہ قوانین ان اخبارات پر بھی لاگو کیا جائے، اور یہاں پر بھی وہ منیمم ویجز قانون کے تحت تنخواہیں دی جائے۔ اور میں ایک سادہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان اخبارات سے ان کے ملازمین کی فہرست منگائی جائے، جن میں تنخواہوں کا بھی ذکر ہو، تو پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ میرا نام عرفان موسیٰ ہے، اور میں پشاور پریس کلب کا سابقہ جنرل سیکرٹری ہوں۔ آج احتجاج اس وجہ سے تھا کہ میڈیا میں جو ہے وہ صحافیوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، جو تنخواہ ہے وہ انتہائی کم ان کو دی جا رہی ہے۔ اخبارات میں 10 اور 15,000 آج بھی دی جا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے تو کم جو مزدور کی تنخواہ ہے وہ 40,000 ہے، لیکن ہمارے جو کارکن ہے، جو صحافی ہے، ان کو آج بھی وہ 15 اور 20,000 پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس کے خلاف مالکان کے خلاف تھا کہ کروڑ روپے کے وہ اشتہارات لیتے ہیں، لیکن اب جو کارکن صحافی ہے ان کو تنخواہ نہیں دی جا رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو مختلف اداروں سے جو میڈیا ورکر ہے ان کو نکالنے کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے، مختلف چینل جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی تھا کہ ایک نوٹس، اگر ایک مزدور کو بھی آپ فارغ کرتے ہیں تو اس کو کوئی نوٹس، کوئی وجہ بتائی جاتی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ میڈیا میں لوگ جو ہے وہ 10 12 15 سال گزار لیتے ہیں، اور ایک نوٹس پر ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ آج ہر طبقے کے لیے، ہر کمیونٹی کے لیے کوئی نہ کوئی قانون موجود ہے، لیکن صحافیوں کے لیے جو ہے وہ ایسی کوئی قانون موجود نہیں ہے جس کو اس کی جاب کی تحفظ ہو، ان کی جو اگر ان کو کوئی معاشی ان کو تنخواہ ٹائم پر نہ دی جائے، یا پھر ان کا بقایا جات ہو اس کے ادائی کے لیے ان کی اس میں سختی ہو۔ تو آج کے احتجاج اسی سلسلے میں ایک کڑی تھی اس کی۔ اس سے پہلے بھی جو ہے ہماری میٹنگ ہوئی تھی پرسوں، تو اس میں بھی بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ آج جو ہے پھر آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں صحافیوں نے شرکت کی، اور یہ کہا گیا مالکان کو کہ اگر وہ صحافیوں کے جو بقایا جات ہے وہ ادا نہیں کریں گے، جو جبری برطرفیہ ہے اس کا سلسلہ بند نہیں کریں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ صحافی وہاں پر ان کے دفاتر جائیں گے، ان کی تالہ بندی کریں گے، روڈوں پر احتجاج کریں گے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ اب رکنے والے نہیں ہے۔ اسمبلی میں سے بائیکاٹ کا آپشن بھی موجود ہے، کیونکہ صوبائی حکومت تو کروڑوں کی اشتہارات دے رہے، لیکن جو کارکن ہے، زیادہ تر ایسے اخبارات ہے جو پی ڈی ایف میں تیار ہوتے ہیں، وہاں پر کارکن صحافی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ اب چل پڑا ہے، اور صحافی جو ہے وہ اپنے حق کے لیے ہر حد تک جائیں گے، اور ہر چینل میں، ہر اخبار میں حکومت کے خلاف جو ہے وہ خبر چلتی ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، گران جو ہے وہ حکومت کی چونکہ یہاں پر حالات زیادہ تر صحافی ہے کہ جو ان کی مالی حالات انتہائی خراب ہے، یا پھر تنخواہ جس طرح میں نے کہا کہ 10 اور 15,000 ہے، تو پشاور پریس کلب جو ہے وہ ایک ویلفیئر ادارہ ہے۔ ویلفیئر ادارہ اپنے کارکنوں کی جو ہے وہ ویلفیئر کا خیال رکھتی ہے، تو اس وجہ سے جو گرانٹ لیتے ہیں تو وہ ایکولی جو ہے وہ اگر کسی پر کوئی مصیبت ہو، غمی خوشی جو بھی ہو، تو ان کو اپنے کارکنوں جو صحافی ممبران ہیں ان کے ساتھ تعاون کرتی ہے۔ تو آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسا ادارہ ہے جس نے اپنے صدر نے یا سیکرٹری یا کسی نے منع کیا ہو کہ آپ اسٹوری نہ دیں۔ ہر ادارہ جو ہے وہ ہر صحافی جو ہے اس کے پاس جب خبر آتی ہے
तो वो रिपोर्ट करते हैं। सबसे ज्यादा आप देखें पेशावर के सहाफ़ी हैं जो कि हुकूमत पर तनकीद करे, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इमरान की वजह से पेशावर के सहाफ़ी जो है उनकी आवाज़ को दबा जाएगा या फिर उनको चुप किया जा सकेगा। अच्छा, सहाफ़ी जो है वो हमेशा आज़ाद रहा है, इस सिलसिले में उनकी कैद बर्दाश्त की है, उन पर FIR होते हैं, अगर वो अलग बात है। अगर आप एक स्टोरी दे और वो इदारा उसको चाप ना करे तो ये सहाफ़ी का काम नहीं है। सहाफ़ी का काम है स्टोरी देना, जब वो स्टोरी देगा इदारा नहीं चाप करेगा, वो मालिकान चाप नहीं करेंगे, उन जो है मालिकान और हुकूमत आपस में मिले हो तो उसमें सहाफ़ी का कुछ नहीं है। आप देखें कि सोशल मीडिया पर सहाफ़ी जो है अगर उसकी स्टोरी नहीं छपती तो वो अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर डाल लेता है, तो सहाफ़ी को जो है वो दबाना जो है वो नामुमकिन है। मतलब उनको सहाफ़ी की आवाज़ को दबाना जो है वो बहुत मुश्किल है। हुकूमत के लिए आपने देखा कि गजिया का दौर हो, जो भी दौर गुजरा है, तो उन्होंने जो है इसके लिए सहाफ़त के लिए कुर्बानी दी है और हमेशा और प्रेस क्लब के में जो है वो मेंबरान होते हैं उसकी जो एक तरीक़ाकार के थे जो है वो मेंबरान आते हैं। सहाफ़ी जो है वो मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं, फिर जो है ये हमारा अपना जो सहाफ़ियों का इदारा है और यहाँ पर आते हैं और जो वेलफेयर के काम होते हैं वो गई है। और मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। ये आज का एहतजाज तो इस हवाले से है कि तकरीबन यहाँ पे पेशावर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद में सहाफ़ियों को उनकी नौकरियों से निकाला गया है। एक ये उसमें बड़ा मुतालबा है। दूसरी बात ये है कि यहाँ सहाफ़ी जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, उन पे हमले होते हैं, उन्हें शहीद किया जाता है। फिर ये है कि उनकी ये जो पी का कानून है जो अभी वफाकी हुकूमत ने पिछले कई सालों से उसमें जो है ना वो इजाफा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से सहाफ़ियों की जो हालत, मतलब वो काम का जो वो उसको आज़ादी तकरीबन उसकी सलब हो गई है, ऐसे समझ लें। उस कानून के तहत कई सहाफ़ियों को जो है वो टारगेट किया गया है। तो जो आज़ादी सहाफ़त है वो बिल्कुल जो है ना वो ऐसा समझ लें कि बीच में से वो निकल गई है। अब यानी सहाफ़ी जो है वो बेचारे जो है ना मालकान तंग करते हैं उनको, फिर हुकूमत की तरफ से, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से उनकी ज़िंदगी जो है ना बिल्कुल अजीब बनती है। तो ये सारा जो एहतजाज था तो वो सवालिस था और ये हम मतलब कई सालों के बाद मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सहाफ़ी जो है ना बड़े फाल हो गए हैं। आज ये जो खैबर जर्नलिस्ट है और पेशावर प्रेस क्लब है उनकी अपील पे पूरे बसरत में पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये तमाम जो प्रेस क्लब है, यूनियन है, तकरीबन कोई 50 से ज़्यादा प्रेस क्लब है और ये जो 30-36 अजला है उन तमाम अजला में जो है ना वो एहतजाज किया गया है। और ये अभी ये तहरीक जो है वो आज से लाजमी है। इस्लामाबाद में भी आज़ाद नहीं है, लाहौर में भी आज़ाद नहीं है। अब पहले तो इस तरह होता था कि आपको सोशल मीडिया के जरिए कुछ ना कुछ आप आज़ाद थे ना, अभी तो आप एक पोस्ट भी अगर करते हैं ना ट्विटर के ऊपर तो टीका के अंदर आप जो है ना वो अरेस्ट किया जा सकता है। इस तरह कई हमारे साथी जो है इधर पेशावर प्रेस क्लब के साथी है जो अभी इस वक्त टीका के कवानीन जो है ना उनको भुगत रहे हैं, तो इस वजह से कि उन्होंने सिर्फ एक पोस्ट किया था ट्विटर के ऊपर। तो आज़ादी किधर रही है? आज़ादी तो कब की जो है जा चुकी है। और एक बहुत बड़ी एक और बड़ी वजह तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी जो है वो तकसीम है। पाकिस्तान की सतह की जो एक तंजीम थी फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो 1950 में कायम की गई थी, वो एक बहुत फाल तंजीम थी। लेकिन वो जब हामिद मीर साहब के ऊपर हमला हुआ उसके बाद से जो है ना मीडिया भी सारा जो है ना वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी तकसीम हुआ और उसके बाद से तकरीबन ये जो अभी PFUJ है उसमें 6-7 ग्रुप बने हुए हैं। लेकिन एक क्रेडिट जो है ना आप खैबर जर्नलिस्ट को देंगे, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े मराकज़ है जैसे लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, पिंडी है, वहाँ पे जो फेडरल जर्नलिस्ट है या बाकी यूजेस जो है वो सारी तकसीम है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर यहाँ पेशावर का जो खैबर जर्नलिस्ट है ये जो अभी आज का मुजाहरा जिसके अंडर हुआ है इसमें इधर भी ग्रुप है, लेकिन ये मुताबिक है और ये इनकी बड़ी जो है कामयाबी है। मेरा नाम आलमगीर खान है, मैं पेशावर प्रेस क्लब का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज का एहतजाज की नौबत इस वजह से पेश आई क्योंकि जो मीडिया इंडस्ट्री है, मीडिया मालकान है जो जुल्म पर उतर आए हैं, उन्होंने गुज़िश्ता एक हफ्ते में यहाँ पर दर्जन सहाफ़ियों को इदारों से निकाला है, उनको जबरी उनसे इस्तीफे लिए गए हैं। उनमें बड़ी तादाद में हमारा दीगर जो क्लरिकल जो वर्कर है वो भी शामिल था, दीगर स्टाफ भी उसमें शामिल था। तो उसके खिलाफ हम निकले क्योंकि हमें इनके जो इरादे हैं वो ठीक नहीं लग रहे हैं, इस वजह से हम निकले हैं। आज ये पूरे सूबे में एहतजाज था कि जो जबरी बरतरफिया है ये नामंजूर है हमें, और जिन सहाफ़ियों को निकाला गया है इनको वापस एडजस्ट किया जाए। हुकूमत से भी ये मुतालबा किया है कि इन इदारों के जो इश्तिहारात
थे उनको सहाफियों की तनख्वाहों से मशरूत किया जाए, नहीं तो उनके इश्तिहारात बंद किए जाए। और अगर हुकूमत अपने पार्ट पे जो उनकी जिम्मेदारी है वो अदा नहीं करती तो उनके ऐवानों के सामने जाएंगे और वहाँ पर एहतजाज करेंगे, और जो मीडिया मालिकान है उन इदारों के सामने भी जाएंगे, वहाँ पर भी एहतजाज करेंगे, ताकि इनको शर्म आए कि ये जो है जब ये पैसे कमा रहे थे सहाफियों के, इन सहाफी वर्कर के जरिए जो है इनकी वजह से ये अरबपति बन गए हैं, अब जो है ये बैक कलम जुम में सहाफियों को इसी तरह निकाल रहे हैं जैसे इनका कोई पुरसाने हाल ना हो। तो आज हमने इनको दिखा दिया है कि सहाफी जिम्मेदार जो है बुनियादी तौर पर ये मीडिया मालिकान के खिलाफ है जो सहाफियों को बरतरफ कर रहे हैं, और दूसरी नंबर पर उनके जो पसे पर्दा है अगर उनको किसी और जगह से हिदायत मिल रही है तो ये उनके भी खिलाफ है। और अगर हुकूमत इन मीडिया मालिकान को लगाम नहीं देती, उनको उसूलों के मुताबिक जिस तरह इनको इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, जिनको जिस तरह इनको अखबारात की डिक्लेरेशन दी गई, जिस तरह इन्होंने चैनल खोले, जब यहाँ पर मिलिटेंसी थी तो सहाफियों को दलादल भर्ती कर रहे थे, दलादल चैनल आ रहे थे, अब उनके मफादात पूरे हो चुके हैं। तो अब ये सहाफियों से उसके जो है उसका जोर जो है सहाफियों से निकाले, जो हमें किसी तौर भी जो है बुनियादी जो मसला है जो मीडिया इंडस्ट्री के हम बात कर रहे हैं, और जो रिसेंट जो हुआ है वो टीवी चैनल के साथ हुआ है, हालांकि अखबारात में भी ये मसले है, लेकिन जो अब जो रिसेंट ये फ्लो आया है तो ये मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लोगों को निकाला गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको पता है कि ये वफाक के साथ है, और यहाँ पे भी सूबाई हुकूमत जो है उनसे भी हमने ये हमारे यही सहाफियों के यहाँ पर जो है सहाफी अपना बाइज्जत तरीके से अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं, अपना प्रोफेशन जारी रखना चाहते हैं। और आपको मालूम है कि सहाफत पूरी दुनिया में एक मुश्किल काम है, एक मुश्किल पेशा है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर मिलिटेंसी में सहाफियों ने कितनी कुर्बानियां दी है, यहाँ पर हमारे साथी शहीद हो चुके हैं, धमकियां मिली, तो उनके फैमिली तक जो है उनको धमकियां दी गई, उनके फैमिली मुतासिर हुए, हर सहाफी किसी न किसी तरीका से मुतासिर हुआ है। तहफ़्फ़ुज़ तो ये दे नहीं सकते, जो हमारी जान की तहफ़्फ़ुज़ है वो तो ये दे नहीं सकते, लेकिन हमें जो नौकरी के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ है वो तो कम से कम फराहम करे। तो यहाँ पे जो बुनियादी मसले हैं वो तो यही है कि ये मालिकान जो है ये अरबों करोड़ों करोड़ों यहाँ पे इन्होंने कमा लिए हैं, और लेकिन जो सहाफी है उनको ना तो ये टाइम पे तनख्वाह देते हैं। यहाँ पर तनख्वाहों की क्या हाल है आप देखें, अखबारात में 5,000, 6,000, 8,000 रुपए तक तनख्वाह देते हैं, इनमें कोई हिस्स ही नहीं है, बेहिस्स मालिकान है। ये तनख्वाह तो मतलब यहाँ पर तो किसी भी पेशे के लिए ये तनख्वाह मुनासिब नहीं है।